Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So PPT is visible to all of you in the full mode. PPT is visible, yes or no? Yes, sir. Okay. So just I am starting. So in the previous class, we have developed these shape functions. Now we have developed the shape functions for three-noded triangle and six-noded triangle. So it is a three-noded triangle. It is having three nodes, and along with we have developed for the six-noded triangle also. So triangle which is having six nodes, and some idea about the nine-noded also. We have developed the shape function with the help of serendipity approach. The approach was serendipity, in which a scale function is chosen. The scale function is calculated with the help of boundary conditions, and then the shape function is found out. So shape function is basically depends on area coordinates. Shape function हमने किसके फॉर्म में निकाला था? In the form of area coordinates. So area coordinates are represented by R, S, and T. In some books, RST is replaced by zeta, eta, and 1 minus zeta minus eta. Okay, we already know R plus S plus T equal to 1. Okay, तो कुछ बुक्स में RST मिलेगा, कुछ बुक्स में जीटा ईटा मिलेगा, है ना? और जो थर्ड पैरामीटर होगा वो 1 माइनस जीटा माइनस ईटा होगा. तो डोंट कंफ्यूज विद जीटा ईटा और RS. They are the same thing. And in some books it is also written as L1, L2 and L3. कुछ बुक्स में L1, L2, L3 मिलेगा. तो ये तीनों ही सेम चीजें हैं. डोंट कंफ्यूज विद दैट. जब आप अलग अलग ऑथर की बुक्स रेफर करेंगे तो समवेयर ऑथर यूजेस RST, समवेयर जीटा ईटा, समवेयर L1, L2, L3 for the area coordinates. So in the today's class we will focus on the shape function again, but the approach will be used Lagrange. Approach will be used Lagrange. So as per Lagrange approach, let first work on the three-noded triangle. So I am taking the three-noded triangle, node 1, node 2, and node 3. What is the equation of line 2, 3? Anyone? बताइए. What is the equation of line 3? R equal to 0. R equal to 0. Correct. What is the equation of line 1, 3? S equal to 0, and 1, 2 is T equal to 0. So as per Lagrange approach, if I want to find N1, first shape function N1,
तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 3, so I will write line 2 3, equation of line 2 3 the values of R, S, T in the equation, yeah, in the numerator or in the equation. तो देखिए लैग्रेंज बहुत सिंपल अप्रोच है. वो ये कह रही है कि न्यूमरेटर में तो आप इक्वेशन लिखिए और डिनोमिनेटर में आप इक्वेशन में जीटा, इक्वेशन में आरएसटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना. तो देखिए कैसे करेंगे. ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 0 0. इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए r की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0. तो मुझे कौन सी लाइन मैंने इक्वेशन ली है, 2 3, है ना. तो what is the equation of line 2 3 is only r divided by, put the values of r. So what is the value of r for the node 1? 1. R for the node 1 is 1, so it is r upon 1, so it is r. So n1 equal to r. Our first same function is completed. सेरेंडिपिटी अप्रोच से ये क्या आया था, आंसर तो सेम आना है चाहे आप कोई भी अप्रोच यूज करें. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. n1 इक्वल टू r हमारा फर्स्ट सेफ फंक्शन हो गया. सिमिलरली यदि मुझे n2 निकालना है तो कौन सी लाइन का इक्वेशन आएगा न्यूमरेटर में, इस 2 के लिए कौन सी लाइन का इक्वेशन आएगा, 1 3 1 3 और डिवाइडेड बाय वैल्यूज कर देंगे, है ना. तो इक्वेशन ऑफ 1 3 क्या है, s. और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट n2 की, सेकंड सेफ फंक्शन की. तो फिर इस पॉइंट के एरिया कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 1 0. तो r की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1, t की वैल्यू 0. तो जब हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो नोड नंबर 2 के लिए s की वैल्यू क्या है, 1. तो नीचे क्या पुट कर देंगे, 1. तो s y 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल मिला के s ही मिल जाएगा. बात क्लियर हुई. फर्स्ट सेफ फंक्शन में लाइन का इक्वेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू कहाँ की पुट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की पुट करेंगे. जब हम फर्स्ट सेफ फंक्शन निकालेंगे तो बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट पॉइंट की यूज करेंगे. सेकंड सेफ फंक्शन निकालेंगे तो बाउंड्री कंडीशन सेकंड पॉइंट की यूज करेंगे, यानी कि एरिया कोऑर्डिनेट्स सेकंड पॉइंट के यूज करेंगे. जब हम थर्ड सेफ फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम बाउंड्री कंडीशन थर्ड पॉइंट की यूज करेंगे. तो थर्ड पॉइंट की बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, 0 0 1. It means r equal to 0, s equal to 0, t equal to 1. So I can find n3. So n3 is given by equation of line 1 2 divided by values, you know, boundary condition values. So it is equation is t, and what is the value of t? The value is 1 for the point 3. So the third safe function is n3 equal to 2. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. And Lagrange approach is again much easier than the serendipity approach. तो बहुत फटाफट इसमें सेफ फंक्शन आ जाता है. इक्वेशन ऑफ द लाइन डिवाइड बाय बाउंड्री वैल्यूज, दैट्स ऑल. इक्वेशन ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में आएगा इक्वेशन, डिनोमिनेटर में आएगा उसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है, बाउंड्री कंडीशन की वैल्यूज पुट. तो नाउ आई एम मूविंग टू 6 नोडेड ट्रायंगल. 6 noded triangle. So I am making a 6 noded triangle over here. This is my 6 noded triangle, 1 2 3. This is 4, this is 5, this is 6. Okay, what is the equation of line 2 5 3? Anyone? बताओ जरा क्या इक्वेशन है 2 5 3 का. 0. मतलब r is equal to 0. Very good. And what is the equation of line 4 6? R equal to 1/2. ये तो हमने सब कल पढ़ा है ना, मतलब थोड़ा सा Yes, sir. है ना. R equal to 1. अब हम इस पॉइंट के लिए सेफ फंक्शन निकालना चाहते हैं, n1 निकालना चाहते हैं. तो n1 कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर में आपको इक्वेशन लिखने हैं. तो कौन कौन सी लाइन कवर होंगी,
लाइन नंबर 2 3, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 3, और दूसरी लाइन कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन 4 6। ये तो न्यूमरेटर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई बीसी, है ना, यू कैन से अप्लाई बीसी। सो अब लाइन इक्वेशन ऑफ 2 3 इज आर, इक्वेशन ऑफ 4 6 का इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू हाफ, सो इट इज r माइनस हाफ इक्वल टू 0, और यू कैन से 2r minus 1 equal to 0. So the equation is 2r minus 1 divided by the boundary values. So boundary values means what are the boundary values, 1, 0, 0. These are the boundary values. So we need r only, है ना, we need r only. So r is 1, है ना, r is 1, s is 0, t is 0, but s and t is not required at this time. Only r is needed. So I am putting the boundary values, r equal to 1, 2 into 1 minus 1, solve it. So it is r into 2r minus 1 divided by, कितना हो जाएगा ये, 2 1 2 minus 1, 1 into 1 1. So कुल मिला के यही हो गया, r 2r minus 1, it is n1. चेक करिए, सेरेंडिपिटी से यही आंसर आया था हमारा। यस सर, यही आया था, ठीक है। तो हमने लैग्रेंज अप्रोच से भी निकाल लिया n1, है ना। इन द सिमिलर फैशन यू कैन फाइंड n2, n3, n4। तो n2 n3 आपको दे देते हैं जी, असाइनमेंट कर लेंगे अब आप, या करके बताऊं, बताइए। n2 और n3 कर लेंगे सेम तरीके से, खुद कर लेंगे यस सर, कर लेंगे, है ना, कुछ भी नहीं है n2 के लिए, और n3 भी आप कर लेंगे, है ना। तो आंसर लिख देता हूं टेबल में, n2 का आंसर आएगा s इंटू 2s माइनस 1, और n3 का आंसर आएगा t इंटू 2t माइनस 1, करेक्ट। अब हम जरा बस n4 और निकाल लेते हैं। तो n4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मुझे लेने पड़ेंगे इक्वेशन। तो अब n4 निकालना है, तो 4 को छोड़कर बाकी लाइनें लेनी पड़ेंगी, 2 5 3 और 3 6 1। तो 2 5 3, इक्वेशन 2 5 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 6 1, ये तो हो गया न्यूमरेटर। नीचे कर देंगे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई। अब 2 5 3 की इक्वेशन क्या है, r, 3 6 1 का इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 0 मीन्स ओनली s। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए। 0.4 की बाउंड्री कंडीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जरा बताइए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, हाफ, हाफ एंड 0। 0। So r equal to half, s equal to half, t equal to 0. We need r and s. So r equal to half, we are putting value of r, and s is again half. So it is 2 to the 4, it is 4rs. So n4 equal to 4rs. यही आंसर आया था सेरेंडिपिटी से भी। यस सर, ठीक है, तो n4 इज क्लियर। अब n5 n6 आपको छोड़ देते हैं, आप स्वयं कर लेंगे, हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। n5 इज 4st, n6 इज 4st, और उसके बाद में 4r। तो ये दोनों अप्रोच से हमने 3 नोडेड कवर कर लिया और 6 नोडेड भी कवर कर लिया। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जरा सा इसकी एक इंक क्लियर करता हूँ। So write down one numerical. अभी जो न्यूमेरिकल हम करते हैं उसमें थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे, है ना। पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल थे वो केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेस्ड थे। अब जो न्यूमेरिकल होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बेस्ड होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं. फॉर द ट्रायंगुलर एलिमेंट शोन द नोडल वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर. ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर एलिमेंट क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन. सो ट्रायंगुलर एलिमेंट इज शोन ओवर हियर. इट इज ए ट्रायंगुलर एलिमेंट. ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स आर 1 1. This is given 3 1 and this is given 2 3. This is the triangular element shown. A point is inside over here P. The coordinates are 2 2. Okay. So for this triangular element, the nodal values of the displacement are. So nodal values of displacement. These are given. So this is the first node. So nodal values for the displacement will be U1. This is the first node. So it is U1 and it is V1. So U1 is given 2. V1 is given 1. U2 is given 3. V2 is given 2. It means this is the second node. So U2 and V2, these are given, and similarly U3 and V3 are also given. So U3 is 5, V3 is 3. ठीक है, यूनिट में ही ले सकते हैं, कोई भी यूनिट इज नॉट गिवन, मिलीमीटर्स है, मीटर्स नॉट मेंशन. So you consider it is unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit, like this. Now the question is, obtain the displacement for the point P. Now you have to find the displacement for the P. So for point P, the displacements are U and V. Displacements are U and V. So I am showing the displacement in the diagram. So this is U and this is V. So you have to find U and V. This is the question. तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग. बताओ कितने लोग कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. Triangular element is shown. Cartesian coordinates are given. A point inside the triangle is P. Nodal values are given. U1, V1, U2, V2, U3, V3 are given. You have to find U and V. Okay. So finding U and V. So you are knowing the very well-known formula for U. N1 U1, N2 U2 plus N3 U3. This is the formula for finding the U. अब U find करने में आपको चाहिए U1 given in question. सर चले गए, छुट्टी हो गई, मौज हाँ तो करो. तू बन गया होस्ट, पढ़ा दे हमको. सर चले गए, छुट्टी हो गई, मौज करो. अरे तो तू हो गया होस्ट, अब पढ़ा दे, आगे सवाल करा दे इसको आगे. अरे मैंने पढ़ाया, तुम लोग टॉप मार जाओगे, रहने दो. बढ़िया है तो. नहीं नहीं यार, इतना भी टॉप मत मारो, यूनिवर्सिटी पागल हो जाएगी. लवकेश क्लास एंड करके चला जा तू भी. सही कह रहा है, सोच तो यही रहा हूँ. जाओ जाओ, मेरी तरफ से छुट्टी है सबकी, मौज करो.
Am I audible now? Yes, sir. There was some internet issue with me. So I'm again sharing the screen. Yes, the PPT is visible. Yes, sir. I think this was the question on which we were working. So U equal to N1 U1 plus N2 U2 plus N3 U3. So U1 is given in question. U2 is given. U3 is also given. So U1, U2, U3 is not a problem. है ना? So we have to find N1, N2 and N3. ठीक है? Just we have to find N1. We have to find N2. We have to find N3. So what is the formula for N1? N1 के लिए क्या formula जरा बताओ? N2 के लिए क्या है? N3 के लिए क्या है? Anyone बताइए क्या formula है N1 के लिए? Sir, R, S, and T. R, S, and T. Because it is a three-noded triangle element, so N1, N2, N3 will be R, S, T. Now, what is R? What is S? What is T? बताओ R और S T की वैल्यू क्या है? नहीं मालूम है ना? We don't know the value of R, S, and T. So we are interested in finding the displacement U for the point P. हम point P के लिए interested है ना? That's why we will use the value of RST for the point P. ना, we will find R. देखो RST तो हर point के लिए अलग होता है ना? Point 1 के लिए अलग है, point 2 के लिए अलग है, point 3 के लिए अलग है. So point P के लिए RST क्या है? वही तो हम safe function use करेंगे यहाँ पर. Sir. P के लिए safe function use करेंगे. तो RST हमको find करना है ना? We are interested in finding RST for point P. ठीक है? Sir. Point P के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं. तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है x इक्वल टू n1 x1 n2 x2 प्लस n3 x3 इक्वेशन होती है. अब इस इक्वेशन में x y, ये x है ये y है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये x1 है ये y1 है. सिमिलरली x2 y2 x3 y3. These all things are given in question. So just put the values. 2 equal to n1 is r, x1 is 1, n2 is s, x2 is 1, n3 is t, x3 is 1. नहीं, x2 is 3 and x3 is 2. चेक करिए जरा मैंने सही लिखा है. So 2 r plus 3s plus 2t. This is my equation number 1. सही है sir. ठीक है ना? Similarly, we can use this second equation y equal to n1 y1 plus n2 y2 plus n3 y3. So what is the value of y? Again 2. What is n1? It is again r. y1 is 1, n2 is s, y2 is 1, n3 is t, and y3 is 3. So I can write 2 equal to r plus s plus 3t. So this is my second equation. Okay. So मेरा aim क्या है? मेरा aim है मैं RST को find कर लूं. RST find होते ही मुझे displacement मिल जाए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है. अब RST कितने अननोन है टोटल? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3 unknowns are there, but equations are only 2. Sir, n1 plus n2 plus n3 is equal to 1. यानी r plus s plus t is equal to 1. That is what, है ना? So I can write r plus t equal to 1. This is the well-known generalized equation. The summation is always 1. So now I am having 3 equations, 3 unknowns. It can be solved easily. तो इनको solve करिए आप. 2 मिनट का 0 सेशन है. Sir, r is equal to 1 by 2, t is equal to 1 by 2,
So r is equal to -1/2, t is equal to 1/2, नहीं, s is equal to 1/2 and t is equal to 1. ओके 1 हाँ, -1/2, हाफ एंड 1 1/2, 1. है ना, आंसर आ गए -हाफ + हाफ एंड 1। ये कह रहे हो? Yes sir. इसको टोटल करने से तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। Yes sir. r + s + t। ठीक है, तो ठीक है, आपने ये वैल्यूज निकालनी, जरा क्रॉस चेक और करिए, बाकी लोग यही वैल्यूज आ रही हैं RST की, क्योंकि मेरे पास R कुछ डिफरेंट आ रहा है। अच्छा सर, चेक करिए। देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, r + 3s + 2t, है ना? ये से थोड़ी अलग आ रही है अब। r + 3s + 2t। ओके, and second equation is r + s + 3t, है ना? So I think the answer is correct, given by Pratyush, the answer is correct ना। r half, s is half, t is 1। आकाश कटवानी है क्लास में? सर ये गलत है जो मैंने दिया आंसर। हाँ, सही आंसर बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? सर सही आंसर है 1/4, 1/4, 1/2। 1/4, 1/4, 1/2। एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको काट देते हैं। r = 1/4, s = 1/4 and t = 1/2। ये आंसर आ रहा है। ये सर अभी तो यही आ रहा है, बाकी सब लोग बताएं फिर। हाँ, क्रॉस चेक करो इसको, इट इज नीडेड टू बी क्रॉस चेक, है ना। 3 इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो मैं जरा सा इन इक्वेशंस को दोबारा लिख दूं। r + 3s + 2t = 2। writing it here, r + 3s + 2t = 2। Second equation is r + 3t, यही है ना? r + s + 3t = 2, r + s + 3t = 2, and third one is r + s + t = 1। तो इन दोनों की हेल्प से निकाल लो पहले, है ना। ये माइनस माइनस कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? 2t = 1, t = हाफ, है ना। t = हाफ सही है प्रत्युष का आंसर t का। अब इस t हमारा कैलकुलेट हो चुका है, तो अब इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं r और s। तो r + 3s = क्या हो जाएगा? 2 - 2t - 1, दैट इज 1, है ना। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये आपकी इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट करी तो r + s = 2 - 3/2, इट मींस इट इज हाफ। ठीक है, माइनस कर दो, r कैंसिल आउट, 2s = हाफ, so s = 1/4। आंसर इज करेक्ट, and r is again 1/4। so the answer given by Pratyush is correct, है ना। second answer is correct, yes sir यही है 1/4, t = 1/2। so this is correct। चेक कर लिया बाकी सबने? अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं? यस सर यही आ रही है सर। हाँ, सो आंसर इज करेक्ट, है ना। तो सॉल्व कर लिया, बड़े आराम से सॉल्व हो गया है। और आप एग्जाम में यदि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बने तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। RST की वैल्यू आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो 1 3 2, है ना। 1 3 2, 1 1 3 एंड 1 1 1, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इधर आपका RST आ जाएगा और = आपका 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बताओ। AX = B, ये मैट्रिक्स में मेथड पढ़ते थे ना, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, है ना। AX = B, है ना। तो अब बस क्या करना है, आपको इसका इनवर्स निकालना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो RST आ जाएगा ना इजीली।
जिन लोगों को सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम है तो RST हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स 1 3 2 1 3 1 1 1 इसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 2 1। अब ये इनवर्स आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, सब लोग को आना चाहिए, और नहीं आता है तो सीख लो। 3/3 का इनवर्स आपके कैलकुलेटर से निकल जाता है, बड़े आराम से निकल जाता है ना। कैलकुलेटर की मैनुअल देख लो, किसी से सीख लो या यूट्यूब में देख लो, वैल्यूज पुट करनी है, इनवर्स आ जाएगा। तो इनवर्स होके मल्टीप्लाई भी कैलकुलेटर से हो जाएगा, तो सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है और इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, RST आपके हाथ में होगा। ठीक है, किस किस को आता है इनवर्स निकालना कैलकुलेटर से? आता है सर। आता है ना, गुड। ठीक है, जिनको, हाँ बोलिए। कैलकुलेटर से डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व भी तो हो जाती है। हाँ, कैलकुलेटर से इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है, तो उसमें भी जा सकते हैं इक्वेशन मोड में। 3 अननोन तक तो हो ही जाती है सॉल्व, 2 अननोन 3 अननोन है ना, और क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है, डिग्री जिसकी हाई होती है वैसे भी कर सकते हैं। बोथ दी थिंग्स आर पॉसिबल। तो ठीक है, RST इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो हमारी RST निकल चुकी है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर थे, फाइनली U निकाल रहे थे, है ना। तो U वाले इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। N1 कितना आया हमारा? N1 बताओ, N1 कितना आया हमारा? R हमारी कितनी आई है? 1/4। U1 कितना दिया है? 2। N2 मतलब S मतलब 1/4। U2 मतलब 3। N3 मतलब T मतलब हाफ, और U3 मतलब 5। इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा? 2/4, 3/4, 5/4, 5/4 प्लस 5/2 है ना, 5/4 प्लस 5/2, 10/4, 15/4, 3.75 3.75 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो यदि ये एलिमेंट 2 यूनिट डिस्प्लेस होता है, पहला नोड 2 यूनिट डिस्प्लेस होता है, दूसरा नोड 3 यूनिट डिस्प्लेस होता है, और तीसरा 5 यूनिट होता है, तो अंदर वाला जो नोड है वो कितना डिस्प्लेस होगा? 3.75 यूनिट्स डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बात करते हैं, तो इक्वल टू N1 Y1, N2 Y2 प्लस N3 Y3। N1 1/4 है, Y1 N1 V1 आएगा, Y1 नहीं, मैंने गलत लिख दिया। N1 V1, N2 V2, N3 V3। So V1 is 1, N2 is 1/4, 2 is 2, N3 is again, N3 is half, and V3 is 3. Please solve it. ये कितना आ रहा है? 3/4 plus 3/2 So 2.25 है 2.25 25 units. Very good. So I think the question is solved. क्वेश्चन पूरा हो गया, यही पूछा गया था हमसे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने RST फाइंड किए हैं फॉर द पॉइंट P, और पॉइंट P के लिए फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेफ फंक्शंस फॉर पॉइंट P। ठीक है, सेफ फंक्शंस की वैल्यू भी हर पॉइंट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, so what is the safe, what values of safe functions for point P? 1/4, 1/4, half। ठीक है, पॉइंट 1 के लिए सेफ फंक्शंस की वैल्यूज क्या है? आकाश बताइए, what are the values for the safe of the safe functions for point 1? Yes sir. What are the values of safe functions for point 1? So 1 0 0. वेरी गुड, है ना। पॉइंट 1 के लिए पहला सेफ फंक्शन 1 है, बाकी सब 0 0। वही हम बाउंड्री कंडीशन में भी यूज करते हैं इन चीजों को। ठीक है, बिल्कुल। सो वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन एंड टाइम इज आल्सो फिनिश्ड फॉर दिस लेक्चर। सो वी विल अगेन मीट एट 4 o'clock फॉर द सेकंड लेक्चर। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस लेक्चर और इन दिस tutorial numerical, you can ask.
सर जैसे मेरा आंसर मैंने गलत निकाला था माइनस में, हाँ, n1 n2 n3, सर माइनस में तो आ नहीं सकता ना? एरिया कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो माइनस में नहीं आ सकते हैं ना, नहीं आ सकते। ये भी होंगे ना, एरिया इज पॉजिटिव ओके सर, ठीक है, यही पूछना। का रेशियो होता है ना। जी Yes. सर। हाँ, वो आ नहीं सकता, वो बाई चांस सॉल्यूशन मिस्टेक है सर, कोई नहीं। ठीक। ठीक है, ओके। चलिए तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।